Good morning, students. Today we shall be reading chapter 4 poem The Last Bargain by Rabindranath Tagore. Let us read the poem. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. In the heart of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. The sun glistened on the sand, and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me, and said, I hire you with nothing. From thenceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. By Rabindranath Tagore. Now, students, we will see the explanation of the chapter. The poem The Last Bargain by Rabindranath Tagore conveys a powerful message which is apt for today's materialistic world, that no power, no wealth or no lust can make us content. ये जो पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो रचित है लास्ट बार्गेन, इसमें कवि ने ये मैसेज दिया है कि चाहे संसार के हम सभी चीज़ों को खरीद लें, जैसे पावर हमारे पास आ जाए, धन आ जाए, लस्ट आ जाए, लेकिन फिर भी हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है. नेक्स्ट, द पोम opens with the speaker walking on a stone paved road, which symbolizes that life is not smooth, asking out to hire him. कविता के पहले स्टैंजा में देखते हैं कि स्पीकर जो है वो एक स्टोन से बना हुआ जो रोड है, जो कि बता रहा है कि जीवन इतना आसान नहीं है. वो जा रहा है उस पर और कह रहा है कि कोई मुझे हायर कर ले. He came across a king who was riding on his chariot with a sword in one hand. वह एक राजा के सामने आता है जो कि राजा अपने रथ पे सवार थे और हाथ में तलवार लिए हुए थे. The king offered to hire the narrator with his power and authority. राजा ऑफर करते हैं नरेटर को, स्पीकर को, कि वह उसे हायर करेंगे अपने पावर और अथॉरिटी से. However, the power of the king had no value for the narrator and he thus moved ahead. हालांकि बच्चों, इसमें स्पीकर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई राजा के पावर के मुकाबले और फिर राजा को वहाँ से जाना पड़ा. During the midday, the speaker wandered along a twisted lane comprising of houses with shut doors. Midday यानी कि दोपहर का जब समय हुआ, स्पीकर जो है वो चलते चलते एक ट्विस्टेड लेन, घुमावदार गली में पहुँचे, जिसमें कि दोनों तरफ घर बने हुए थे और सबके दरवाजे बंद थे. एन ओल्ड मैन विथ ए बैग ऑफ गोल्ड केम आउट एंड ऑफर टू हायर द स्पीकर विथ हिज मनी. एक वृद्ध व्यक्ति अपने घर से एक बैग ऑफ गोल्ड लेकर निकला और स्पीकर से कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा. हाउएवर मनी विल सून बी स्पेंट एंड कैनॉट बाई अस एवर लास्टिंग हैप्पीनेस. हालांकि बच्चों, इसमें बताया गया है कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है. यह हमारे एवर लास्टिंग हैप्पीनेस को, कभी न ख़त्म होने वाली खुशियों को खरीद नहीं सकता है. देयरफॉर द ओल्ड मैन्स वेल्थ कुड नॉट परसुएड द नरेटर टू सेल हिज सर्विसेज. इसलिए बच्चों, वो ओल्ड मैन ने जो ऑफर किया बैग ऑफ गोल्ड, उससे नरेटर उसके प्रति आकर्षित नहीं हुए और उन्होंने उससे हायर होने से मना कर दिया. During the evening, the narrator passed a garden hedge which was covered by various flowers. जब शाम हुआ बच्चों, तो जो नरेटर थे वो गार्डन के आस पास से गुजर रहे थे, जो इसमें कि बहुत से फ्लावर्स खिले हुए थे. A beautiful maiden came out and offered to hire him with the flattering smile. एक बहुत ही खूबसूरत महिला वहाँ से बाहर निकली मुस्कुराते हुए और उसने कहा कि मैं आपको अपनी सुंदरता से, मुस्कुराहट से आपको हायर कर लूँगी. However, since beauty took a short lift
and would soon fade away, so he rejected her. हालांकि नरेटर को यह बात पता था कि सुंदरता टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, आज है कल बढ़ते हुए उम्र के साथ समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने आप को मेडन के द्वारा हायर नहीं किया। Upon which the maiden's beauty and flattering smile melted and tears, and she then went back alone into the dark night. इससे घबराकर उदास होकर मेडन की जो उत्साह थी उसमें कमी आई, उसके स्माइल रुक गए और वो आंसुओं में बदल गए और वह रोती हुई डार्क नाइट में चली गई। The next morning the sea coast shone golden and the sea waves broke in a rebellious manner. नेक्स्ट मॉर्निंग की सीन है बच्चों, जिसमें कि सी कोस्ट की यानी कि समुद्र तट की सीन है, जो कि उसके रेत गोल्डन कलर के चमक रहे थे, जहाँ पे सी वेव्स टकरा रहे थे। अ चाइल्ड सिम्बलाइजेज चेयरफुलनेस एंड कंटेनमेंट। यहाँ एक बच्चा है जो कि खुशी का और सेटिस्फैक्शन का सिम्बलाइज करता है, बताता है। व्हाट सिटिंग ऑन द सन ग्लिस्निंग कोस्ट, सूर्य से चमक रही जो रेत थी कोस्ट की, उस पर बैठा था, प्लेइंग विथ सी सेल्स, और वो जो सी में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं उससे वो खेल रहा था। ही ऑफर टू हायर द स्पीकर विथ नथिंग, उसने स्पीकर को कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको हायर करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको हायर करना चाहता हूँ। द नरेटर वॉज अट्रैक्टेड बाय द फ्लॉलेस कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड। नरेटर उस बच्चे के इस कैरेक्टर से, चरित्र से उसके प्रति आकर्षित हुए। and was overwhelmed by the simplicity and innocence which did not give materialistic pleasures but was more satisfying. जो बच्चे ने दिलचस्पी दिखाई, जो बच्चे ने इनोसेंस दिखाई, जो बच्चे ने सिंप्लिसिटी दिखाई, उससे वो ओवरवेल्म्ड हो गए, आह्लादित हो गए। यद्यपि वो जानते थे कि इस मेटलिस्टिक संसार में इसका कोई वजूद नहीं है, फिर भी वो संतुष्ट दिखे। Thus the bargain was struck by a child who hired the speaker for nothing. और इस तरह से स्टूडेंट्स लास्ट में जो स्पीकर थे वो हायर किए गए इस बच्चे के द्वारा, बट ओनली बाय हिज इनोसेंस, केवल क्योंकि उसके पास इनोसेंस थी। आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। इस पोएम के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बताया है कि जो मेटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं, फिजिकल जो चीज़ें हैं, प्लेजर्स हैं, वो क्षणिक हैं, टेम्पररी हैं, दे आर नॉट परमानेंट, बट द परमानेंट थिंग इज सेटिस्फैक्शन। सो हम सबको संतोष रखना चाहिए, संतोषम परम सुखम। धन्यवाद। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। टेक केयर।